ایک بیڈ پہ اس نے اس حالت میں پڑی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اس کا میاں تھا، میں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا بیٹا مجھے بتا رہا ہے کہ ماما مجھے آج میں تھک گیا ہوں، پاپا ماما مجھے بار بار بھیجی دکان پہ جاؤ۔ تو میں تھک گیا تھا، میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو ماما اس کے ساتھ گندے کام کر رہی تھی، اس انکل کے ساتھ۔ اس نے جب محبت کا مان نہیں رکھا تو آپ کس چیز کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اب یہ دیکھیں میرے نکاح میں ہے تو اس کے غیر مرد کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میری بیوی نے یہ کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں گواہ ہوں۔ 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ مرد نامرد ہو، ویسے بھی اگر مرد نامرد نکل بھی آئے تب بھی کسی عورت کا اسے بے وفائی کرنا نہیں بنتا۔ لوگ میری بہت طرفداری کر رہے ہیں، مجھے ہمت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں عبدالرحمان آپ کے ساتھ ہیں۔ اس عورت کے لیے تمہارے دل میں جگہ کتنی وہ بتاؤ ناظرین۔ میں سر یہ کہتا ہوں میرے دل میں جو جگہ میرے بچوں کی ہے، بس میں بچوں کی وجہ سے اگر آتی ہے تو بچوں کی وجہ سے تسلیم کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ نوشاد۔ ناظرین، آج MYK نیوز ایک درد بھری داستان آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہے۔ ایک سٹوری ہے جو کہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر۔ لوگ جو اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو دوسرے جو فریق ہے اس معاملے میں اس کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتا ہے، لیکن ایک فریق کے لیے آواز کوئی نہیں اٹھاتا۔ وہ چاہے جیسا بھی ہو، اس کا قصور ہو نہ ہو، ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں اس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ فریق کون ہے؟ وہ میں ہوں، وہ بھائی ہے، وہ باپ ہے، اور وہ ہے مرد۔ مرد کا ہمیشہ ہماری سوسائٹی میں قصور نکالا جاتا ہے۔ لیکن آج MYK نیوز ایک ایسے مرد کی داستان لے کر آیا جس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا، جو کسی ایک عورت کی بے وفائی کا شکار ہوا۔ آج وہ لاچار نادار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور وہ ابھی کیا ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر عبدالرحمان۔ اچھا عبدالرحمان، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میرا نالا خود کا رہائشی ہوں۔ اچھا، رنالہ خورد شہر سے۔ جی سر۔ اچھا عبدالرحمان، یہ بتاؤ کہ کیا واقعہ پیش آیا؟ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، آپ رو رہے ہیں۔ آپ کی سب سے پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ جو ہے وہ خودکشی کر رہے تھے، آپ لٹک رہے تھے۔ کیا بات ہوئی تھی؟ سر بات یہ ہے کہ میں نالا خود کا رہائشی ہوں، میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں اور اس میں 2 میرے بچے ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ میں لاہور میں میرا کاروبار ہے لکڑی کا، میں کارپینٹر ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ 6-7 ماہ پیچھے میں نے یہاں پہ رینٹ پہ مکان لے رکھا تھا لاہور۔ میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی اور اس حوالے سے پھر جو معاملات سارے بنے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نہیں تو آپ زیادہ جو آپ کا جو عرصہ ہے وہ آپ ادھر ہی گزارتے تھے لاہور میں؟ جی سر، میرا زیادہ عرصہ یہاں پہ گزرتا، فیملی پیچھے ہوتی؟ فیملی میری پیچھے تھی، لیکن میری جو بیٹی ہے، جو میرا بیٹا ہے وہ میرے بغیر رہتے نہیں تھے۔ میں نے یہی سوچا کہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھتا ہوں ادھر۔ میں نے چنگی امر صدی پہ میں نے ایک مکان رینٹ پہ لیا۔ وہاں پہ ایک عورت تھی، ملکانی کہتے ہیں، وہ میرے گھر اس کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ یہ سارے معاملات اس کی وجہ سے بنے ہیں۔ میں پھر واپس کرپٹ تھی عورت؟ وہ جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ اصل معاملہ ہے کہ میری جو وائف ہے، میری بیوی ہے، جو یہ سلائی کا کام کرتی تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی ہمارے ہمسائے تھے تو ہمارے گھر اس کا آنا جانا ہو گیا۔ لیکن محلے داروں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے، تو میں نے اپنی بیوی کو روکا بھی اس کو گھر نہ آنا دیا کرو، تو وہ اس نے کہا۔ اچھا، جب آپ نے اپنی بیوی کو روک دیا، وہ جو مبینہ طور پہ کرپٹ خاتون تھی ملکانی، تو آپ کی بیوی کا کیا جواب آیا اس پر؟ میری بیوی نے یہ کہا تھا کہ میں ویسے مجھے اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے نا، تو اس سے منع میں کر دوں گی۔ میں نے بھی اس سے ویسے منع اسے کر دیا تھا کہ میرے خود نہیں کھینچا تھا؟ میں نے خود ہی اسے کہہ دیا تھا کہ میرے گھر آپ نے نہیں آنا۔ اور بات یہ ہے کہ میری جو گرمیوں کا دن تھا، چھت پہ سارے بیٹھتے تھے، وہ بھی ہماری چھت ان کی چھت ایک ہی تھی بالکل، تو وہاں پہ اس کی دوستی ہوگی۔ پھر یہ ایک ہے ظہیر، ایک سعید کی یہ دوستی تھی اس کے ملکانی کے ساتھ، اور ملکانی نے پھر یہ ظہیر تھا، سعید کا دوست تھا، اس نے میری وائف کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، پھر اس کے یہ جو سعید تھا یہ آپ کا محلے دار تھا؟ یہ اصل بات ہے، یہ باہر یہ وکاڑے کے رہائشی ہیں، کوئی فیصل آباد کا، ایسے وہ نا جیسے چھڑے ہوتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ایک کوارٹر لے لیتے ہیں، یہ وہاں پہ رہتے تھے سارے، ٹھیک ہے نا۔ اب میری بیوی کے ساتھ اس نے بات کرائی ہے، میری بیوی نے مجھے ملکانی نے آپ کی بیوی کے ساتھ سعید کی بات کروائی؟ نہیں، سعید کی ظہیر کی بات کرائی۔ ظہیر کی بات
अब ज़ही से इसका फेर चल गया, ये मैसेज करती थी, कॉलें करती थी, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो सुबह जाता था शाम को आता, और हमारी इतनी मर्द का काम ही ये होता है, उसने सुबह को रोज़ी रोटी कमाने जाना, शाम को वापस हमारी आना। इतनी मोहब्बत थी, कभी ऐसे हुआ ही नहीं। 7 साल हो गए, हमने 2 बच्चे पैदा किए हैं, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। हमारी इतनी मोहब्बत थी कि एक मिसाल है हमारी, ठीक है ना। उसने जब मोहब्बत का मान नहीं रखा तो आप किस चीज़ के लिए मरे जा रहे हो? अब तो मैं उसके लिए नहीं मर रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चों की वजह से। के साथ हैं उसके? बच्चे उसके पास हैं। जो मेरी बेटी है वो 1 साल की है, मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, और मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपने बेटे से बहुत करता हूँ। एक नाम क्या बच्चों का? मेरी जो बेटी है उसका नाम आमना रहमान है, और बेटे का नाम बिलाल अली है। तो बात यह है कि मैं अब उसको क्या करना है, मेरे बच्चों का मसला। मैंने जब उसको थाने में लेकर आए, असल मामला तो है कि मैंने एक पर्चा यहाँ पे लारी अड्डा में करवा रखा था। अब मैंने तो यही बोला कि मेरी बीवी अगवा हो चुकी, बच्चे अगवा हो चुके हैं। जब जो पर्चा हो गया, सारा कुछ मामला तो हो गया, फिर नंबर ट्रेस किए गए, फिर वहाँ पे उसको उस पर रेड किया गया। जब रेड किया तो उस हालत में वो पड़ी थी कि आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं बहुत। जहाँ पे आप पहुँचे जहाँ पे रेड करने, एक CDR बेड पे- निकलवाने के बाद? एक बेड पे उसने इस हालत में पड़ी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं उसका मियाँ था, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैंने फिर क्या कर सकता था। चित्तर नहीं फेरे? फिर छितर में क्या सर फेर सकता था। मैंने अपने बच्चों को गले पे लगा लिया, मैंने कहा बेटा आप फिर जो सारे मामले में रोना। बच्चों ने क्या कहा? जब वहाँ पे हमने रेड किया, फिर उसको नीचे लेकर गया, गाड़ी में उठाया, तो मेरे बेटे से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कहता पापा याद आती थी, मामा कह रही थी कि पापा मर गए हैं आपके, ठीक है ना। और मैंने फिर ये कह दिया कि बेटा मैं तो ज़िंदा हूँ, बिल्कुल आपके सामने हूँ, तो आपकी मम्मा झूठ बोल रही है। फिर हम चले गए हैं थाना। बच्चों ने मामा के करतूतों के बारे में कोई बात नहीं की? सर मेरा बेटा मुझे बता रहा है कि मम्मा मुझे आज मैं थक गया हूँ पापा, मम्मा मुझे बार बार भेजी दुकान पे जाओ। तो मैं थक गया था, मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया, तो मम्मा इसके साथ गंदे काम कर रही थी, इस अंकल के साथ। नाज़रीन आप सुन रहे हैं अभी अब्दुर्रहमान की बातें, हम आगे भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो है वो बदकिस्मती कह लें आप, कि जो मर्द है उसके लिए आवाज़ कोई नहीं उठाता। अब अब्दुर्रहमान के साथ कितनी ज़्यादती हुई है, औरत मार्च बड़ा किया जाता है। अगर आज ये वाक़या किसी औरत के साथ हुआ होता, किसी मर्द ने बेवफाई की होती, तो हम देखते कि सड़कों पे कैसे उधम जो है वो हटो बच्चों का शोर होता और आज जो है वो बरपा हुआ था। अच्छा अब्दुर्रहमान ये बताओ कि मुस्तकबिल का अब क्या प्लान है? ये तो जो होना था हो गया, आज भी आप अदालत आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं? सर मुझ पे एक पुलिस वालों ने नेकी कर दिया है कि ये मीडिया के सामने बात कर रहा है, हमारी करतूत सामने आ जाएगी। जो अनवर थानेदार है मुझसे 30,000 रुपये उसने लिया। किस मकसद के लिए लिए? ये कहता है कि पैसे से बगैर काम नहीं होता। ठीक जो अनवर थानेदार है ये थाना रावी रोड पे है? नहीं, ये सर है इधर लारी अड्डा में, ठीक है ना। मैंने 5,000 की सिगरेटें दी, रेड और वाइट गोल्ड भी पीता है, ठीक है ना। मेरी गाड़ी पे उसने रेड किया है, मेरे तेल पे उसने किया है, ठीक है ना। लाहौर में किया था रेड? लाहौर में गज्जू मते में, ठीक है ना। अब बात और यहाँ से रावी रोड से जो SP सिटी हैं वो सुन रहे होंगे इस वक्त कि आपके नीचे जो रावी रोड का एक थानेदार है उसने जो है वो 30,000 रुपये इनसे एंट लिए। आप इनकी हालत देख सकते हैं कि मतलब ये कस्मा पुरसी की हालत का शिकार है, लेकिन एक थानेदार ने जो इनसे 30,000 रुपये इनसे एंट लिया। अनवर थानेदार ये है तफ्तीशी जो है इन्वेस्टिगेशन का। अब बात यह है कि जब मेरी बीवी को बरामद किया गया, उसने मुझे सारी बातें बताई कि मैंने आपको नशे की गोलियां दी थी, मैंने ऐसे किया था, लेकिन रहमान मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा रहमान अब कोई वजह होती है लड़ाई की, तनाज़े की, क्या जो उनको नान नफ़का है उसका आप ख्याल नहीं कर रहे थे? सर कोई हमारे खर्चे का लड़ने का ऐसे मेरा कारोबार वसी है, मैं वुड का काम करता हूँ, मेरे का ऐसा मसला नहीं है सर। मैंने 2 बच्चे उसमें पैदा किए हैं, एक बच्चा 6 साल का है। ना मर्द भी नहीं हो, ज़ाहिर सी बात है 2-3 वजूहत हो सकती हैं कि मर्द ना मर्द हो। वैसे भी अगर मर्द ना मर्द निकल भी आए तब भी किसी औरत का उससे बेवफाई करना नहीं बनता। औरतें चलती हैं, वफा करती हैं आखिरी दम तक, लेकिन बात यह है कि आप नाम नफ़के का भी ख्याल कर रहे थे, खर्चे का भी थे, वैसे भी फिज़िकली फ़िट हो, फिर क्या हुआ? असल बात है जे मुझे वक्त कम तो नहीं दे रहे? नहीं लेकिन कोई भी वजह जो है उसकी बेवफाई को जस्टिफाई नहीं कर सकती। असल बात है कि वो मेरी जो बीवी है ना, मैं आज भी कहता हूँ वो नमाज़न थी। मेरा बेटा 6 साल का, वो भी नमाज़ पढ़ता है, वो 5 के वक्त नहीं लेकिन 3 वक्त की तो लाजमी पढ़ता है, वो 6 साल का बेटा। हमारी एक ऐसी तरबियत हमने अपने बच्चों को दे के रखी थी कि जो मेरी बेटी है, आप वीडियो में देखते हैं कि मुझसे कितनी मोहब्बत करी। 1 साल की बेटी, मैं उसका बाप हूँ, उसने जन्म दिया है। तो मैं अब्दुर्रहमान ये तो सब कुछ हो गया, आपका रोला भी पूरे पाकिस्तान ने सुन लिया, आपका दर्द भी सुन लिया, दुख भी सुन लिया। ये बताओ अब कि मुस्तकबिल का क्या प्लान है? सर मुस्तकबिल का ये है कि मेरा मुस्तकबिल ये है कि मेरे बच्चे मुझे मिले और बच्चे मिले। बच्चों का अब उस औरत को वापस ना लेना अब्दुर्रहमान। सर मैं वापस उसको, मैंने ये भी बोला है कि तूने गुनाह किया, मैंने अल्लाह की तरफ से मांग। देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने भी जो है वो सारे गुनाहों की माफ़ी रखी, शिर्क की माफ़ी नहीं रखी। उसने तुम्हारे साथ शिर्क किया ना, तो मजाजी खुदा थे उसके। तो बस ठीक है, बाकी चलो अगर कोई खातून जो है तुम्हें प्रपोज़ करती है, जाओगे?
सर मैं फ़िलहाल तो अपने बच्चों का सोच रहा हूँ कि मेरी मैं तो सोच रहा हूँ आगे भी बच्चों का सोचना बच्चे मुझे मिले। मैं अभी कोई शादी वगैरह का नहीं सोचता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी मिले। जो मेरी बेटी के बेटे के सामने एक औरत इस हालात में पड़ी है और ये ज़ना कर रही है, तो मेरी बेटी का क्या बनेगा, उस बेटे का क्या बनेगा? उस औरत के लिए तुम्हारे दिल में जगह कितनी वो बताओ नाजरीन को। मैं सर ये कहता हूँ, मेरे दिल में जो जगह है मेरे बच्चों की है। बस मैं बच्चों की वजह से अगर आती है तो बच्चों की वजह से तस्लीम करूँगा, ठीक है ना जी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। नाज़रीन आप सुन सकते हैं अब्दुर्रहमान के अभी भी जज्बात, कि अब्दुर्रहमान का ये कहना है इतना सब कुछ होने के बावजूद, अपनी आंखों से क़यामत का मंजर देखने के बावजूद, आज भी अब्दुर्रहमान एक वफ़ादार मर्द की तरह यहाँ पे अपने जज्बात इस तरह बयान कर रहा है कि आज भी उस औरत को ये कबूल करने को तैयार है। बाकी जो सोसाइटी के जो लोग हैं जो हर बार मर्द को ही कसूरवार ठहराते हैं, उनके लिए भी ये लम्हा फ़िक्री है जी। सर बात यह है कि हमारे माशरे में एक ट्रेंड चला हुआ है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब ये देखें, मेरे निकाह में है तो उसके गैर मर्द के साथ रह रही है। अब ये कैसा ट्रेंड है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब ये है कि मेरे निकाह में है और किसी गैर मर्द के साथ वो ज़ना कर रही है, रह रही है। क्या ये सब कुछ? जब मेरी बीवी को बरामद किया गया, उसने मुझसे मादद की, माफ़ी मांगी, मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। सुबह जब आया अनवर थानेदार तो बयान रिकॉर्ड करने थे, उसने कहा भी यहाँ पे जो बयान रिकॉर्ड करने वही आपको अदालत में कराने हैं। तो आप क्या बयान दे रही हैं? मेरी बीवी ने यह कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं गवाह हूँ। अनवर थानेदार बार बार ये कह रहा था कि तू ऐसा ना कह, ऐसे कह जाना तो अपने मियाँ के साथ है। तूने अगर बयान दोगी ना भी दोगी फिर भी अपने मियाँ के साथ ही जाना। तो आप ऐसा कह दें कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं अगवा नहीं हुई। वो बार बार मेरी बीवी ये बयान दे रही थी और अनवर थानेदार का आप ये ना कहें। और जब फिर थानेदार दूसरी पार्टी से मिला, दूसरी पार्टी से उसने पैसे मुझसे लिए। बाद में फैक्ट्री जो माल रखा है वो बहुत पावरफुल है। वो आया है, उसने अपने कमरे में, अनवर थानेदार के कमरे में चला गया, वहाँ पे बहुत सस्ते बाहर आए हैं, ठीक है ना। और बाद में उसने मुझे गाली गलौज शुरू कर दी, ठीक है ना, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। मैं चुप कर गया। उसके बाद मेरी बीवी ने सुबह जब बयान लिखवाए तो बयान रिकॉर्ड और करा रही थी, ये बयान कुछ और रिकॉर्ड करा रहे थे, ठीक है ना। अब बात यह है कि जब अदालत में आए हैं तो अदालत में जब जज साहब के सामने पेश हुए हैं तो मेरी बीवी ने यह कहा कि मैं अगवा हुई हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है और जज साहब ने उसे दारुलमान तो बात सुनो, अभी ये भी आपने बताया कि बाहर के ममालिक से जो है काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, क्या कॉल्स आ रही हैं? सर वो ये कह रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, हम यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। लोग मेरी बहुत तरफदारी कर रहे हैं, मुझे हिम्मत दे रहे हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं अब्दुर्रहमान आपके साथ हैं और उसके अब्बू को भी कॉल कर रहे हैं कि इसके बीवी बच्चे वापस कर दो। अब वो ये कह रहा है कि हमें जज ने दी है, ठीक है ना। अब बात यह है कि मेरे निकाह में है, जो भी मिस्टेक होगी है, ठीक है ना। अब वो कैसे रखते हैं, उसी बंदे के साथ चली गई है जिससे बरामद की है, वहाँ पे जना हो रहा है। अब जब मुझसे खुला लेती तो फिर उसके पास उसके साथ चली जाती। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। अनवर थानेदार ने सबसे उसका ज़्यादा किरदार है कि मेरी बीवी को टॉर्चर उसने किया और वो बयान दे रही थी, इस बंदे ने उसको परेशान किया है और जो बयान उसको दे रही थी वो बयान रिकॉर्ड नहीं हुए। जी नाज़रीन, आपने सुनी अब्दुर्रहमान की बातें। लम्हा फ़िक्री है ये चीज़ कि इनके साथ ज़्यादती हुई, इनके साथ जबर हुआ, ये टूटे हुए थे, ये हारे हुए थे। लेकिन इनके साथ जो थानेदार है अनवर लारी अड्डे का, उसने जो है इससे जो है 30,000 रुपये ऐंठे। फिर इसने वो जुल्म देखा अपनी आंखों से, वो कहर देखा बिस्तर पर अपनी बेगम को किसी और शख्स के साथ। और आज ये स्टिल अब्दुर्रहमान जो अपने बच्चों की खातिर अपनी जो बेगम है उसको वापस लेने को तैयार है। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ देखने के लिए MYK न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब तक के लिए राव नशाद को कैमरामैन इदनान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।